Hey Swada, what does home mean to you? Home. Hi guys, welcome back to Mom Fab Life. Hi, I'm Swadha. I'm an artist, I'm a wife, I'm a mother of two beautiful twin daughters and a YouTuber. So today's video is rather special for me because finally I am sharing our home tour video on my channel. Now we have just completed living 1 year in this house. So in order to make this event even more special, what better than to make a home tour video? And that's exactly what I'm doing today. And like they say, a house is a reflection of people who live inside the house. So this house is also made with a lot of love, a lot of thought process and a lot of DIYs. So I really hope you like this video. Now without making this intro even more longer, let's begin. Welcome to my home. मेरे लिए घर वो है जहाँ के पर्दे हवा से बातें करें। घर वो है जहाँ की सुबह और शाम कभी भी पुरानी नहीं होती। घर वो है जहाँ आप और आपके परिवार वाले, कुछ ऐसे लोग जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, मिलके बनाते हैं। आज मैं आप सबका अपने घर में स्वागत करती हूँ। वेलकम टू मॉम फैब लाइफ एंड वेलकम टू माई होम। ये है मेरे घर का एंट्रेंस और घर का एंट्रेंस काफी सिंपल रखा है। एक डोर है, डोर मैट है, 2 प्लांटर्स हैं। ये एक DIY नेम बोर्ड है जो मैंने खुद बनाया है और उसके ऊपर एक ईविल आई भी रखा है। ये एक शू रैक है। घर के एंट्रेंस की काफी बातें हो गई, अब घर के अंदर चलते हैं। एंट्रीवे और द फॉयर वे। लेफ्ट साइड में काफी सारी पेंटिंग्स लगी हैं छोटी-छोटी कोलाज फॉर्म पे, और राइट साइड में एक छोटा सा पार्टीशन है विद दिस ब्यूटीफुल सॉलिड वुड पिलर जो माउंटेड है ऑन अ ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म। So guys, a lot of people ask me what is the purpose of this place. Basically it was made for aesthetical reason. There was no purpose, but now that I'm living in this house for past 1 year, I think this has become such an important element of this living room. I sit here, we have our tea here sometimes, and when we have guests over, some friends over, they also sit here. My kids have fun here, they climb up and down, they play here, and before going out we can just sit here. It's helpful to just tie our shoe and stuff. So this has become a very important element of this whole house. I just love how this has come up, and I'm extremely proud of this place, this granite platform and this pillar. So I absolutely love this space of my house. So this is a humble 2 BHK apartment around 1200 square feet. This is the living room. This is an L-shaped living room जहाँ पे एक part है the living room और the entertainment area and the other part is the dining space. So अब बातें करते हैं living room की. This is how our living room looks. एक छोटा सा table है. It's called an end table to the sofa. And then there are 2 chairs, colorful chairs by IKEA. ये मेरे बच्चों की chairs हैं और ये हमेशा लिविंग रूम में ही रहती हैं ताकि वो भी हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। इस चेयर्स को कहीं पे भी लगा के, स्पेशली अराउंड द कॉफ़ी टेबल, वो लोग खाना खाते हैं, कभी कभी अपना होमवर्क करते हैं। दिस इज़ द सेंटर टेबल जिसको मैंने एक लूडो के फॉर्म में डिज़ाइन किया है, और सिंस वी आर अ फैमिली ऑफ 4, कभी कभी हमारी गेम नाइट्स होती हैं। तो ऑल टुगेदर देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैश ऑफ पैटर्न्स एज यू कैन सी, पर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
Now talking about this area, this is like a corner shelf जहाँ पे मैंने छोटे छोटे artifacts रखे हुए हैं. This also happens to be the northeast corner of the house. तो इस shelf पे आप बहुत सारी भगवान की मूर्ति देखेंगे because this is the northeast corner. And then this red painting is the star of my living room. This is my joy and pride. Since I'm an artist, ये painting मैंने खुद ही बनाई है and I always knew that this huge painting will come on this side of my wall. So basically this is the north wall of our house and this is a spiritual painting which is actually kind of complementing all the Indian elements in this room. ये TV cabinet area है, so it is very simple. There is a floating shelf, a TV cabinet and some storage. Altogether this is how the living room looks. So now let's talk about the dining area of this living room. So the dining area is pretty simple, काफ़ी simple रखा है मैंने क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे सारे घर के members आते हैं, खाना खाते हैं, इकट्ठे होते हैं, parties होती हैं तो हमारे friends आते हैं. तो एक wall बनाई है मैंने जो हमारी एक memory wall है. इसमें कुछ ऐसी pictures हैं जो मेरी all time favorite pictures हैं. कुछ ऐसे moment हैं जिनसे मैं कभी भी बोर नहीं होती और मैं हमेशा जब ये पिक्चर्स देखती हूँ तो मेरे फेस पे एक स्माइल आ जाती है. ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, शीशम वुड डाइनिंग टेबल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. बीच में एक छोटा सा अरेंजमेंट है लेजी सूजन के ऊपर. ये एक पानी की बोतल है, एक वाज है, एक छोटा सा प्लांट है और एक अचार का विंटेज जार है. तो एक छोटा सा अरेंजमेंट है, थिंग्स विच आई नीड ऑफन. So if you see the whole space is pretty simple. I am really fond of pictures and artwork and photography. तो मैंने walls को उन्हीं चीज़ों से सजाया है जो मैं देख कर which infuses happiness in you. So this is a small area which again I have kept it very simple and I really like the vibe of this dining space. Very important space of a house which is the kitchen. Now the kitchen is the most important space क्योंकि एक घर का हार्ट है किचन. एक ऐसी जगह है जहाँ से सब लोगों को घर के लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है. सो मेरा जो किचन है वो भी काफ़ी केयरफुली डिज़ाइन किया है मैंने. इसकी एक्चुअली एक डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पे. सो इफ़ बाय एनी चांस यू हैव मिस्ड दैट वीडियो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू माय चैनल एंड वॉच अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट द किचन जिसमें है अबाउट द टाइल्स, अबाउट द डिज़ाइन, अबाउट द फंक्शनैलिटी, अबाउट द थिंग्स और द की एलिमेंट्स विच आई हैव यूज्ड. पर अभी मैं एक थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि बेसिकली आई वांटेड अ लिटिल कलरफुल किचन. मैं चाहती थी कि मैं किचन में जब एंटर करूँ तो थोड़े से कलर्स हो, मुझे काम करने में मज़ा आए. ऑल्सो फंक्शनैलिटी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने बहुत ध्यान में रखी. फॉर एग्जाम्पल दिस स्पाइस रैक इज जस्ट नेक्स्ट टू द गैस स्टव. उसके बाद ये छोटा सा एक हैंगिंग रैक है जिसमें हैंगिंग शेल्फ है जिसमें सारे कप्स रहते हैं विच इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल. और वेदर इट्स दिस नाइफ मैग्नेट विच इज़ अगेन वेरी इजीली एक्सेसिबल, बच्चों से भी दूर रहता है. दिस इज़ अ होल एरिया, सेपरेट एरिया जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं. जैसे ऊपर माइक्रोवेव है और नीचे सारे किचन रिलेटेड गैजेट्स हैं. ये शेल्फ है जहाँ पे थोड़ा मैंने डेकोरेशन रखा है प्लस स्नैक्स हैं सो दैट इट इज़ ईजी टू ग्रैब एंड गो. दिस इज़ द डिश ड्राइंग रैक और ये सिंक के बाजू में है सो दैट आई वॉश द विसल्स एंड कीप इट ऑन द डिश ड्राइंग रैक एंड दैट वे इट्स ईजियर. सो पूरा किचन इस तरीके से डिज़ाइन किया है मैंने कि इसमें काम करने में मज़ा आए, कलरफुल रहे थोड़ा सा और फंक्शनल रहे.
So I have been shooting about this home tour since few months now because home tour shoot करना आसान नहीं होता. आपको पूरा घर एट अ स्ट्रेच हमेशा साफ रखना पड़ता है एंड बार बार शूट करना पड़ता है, एडिट होता है, सुबह से शाम होती है, लाइटिंग डिफरेंस भी आता है. बट फाइनली आई एम ग्लैड आई एम शूटिंग दिस. और अब हम एंटर कर रहे हैं इस घर के सबसे प्यारे कमरे में विच इज डेडिकेटेड टू माई किड्स. दिस इज द किड्स रूम ऑफ आवर हाउस. जिनको नहीं पता है, हाय, आई एम अ ट्विन मॉम. मेरे ट्विन डॉटर्स हैं तनीसी एंड विदुषी. और ये जो नेम प्लेट आप देख रहे हो, नेम बोर्ड जो उनके रूम के बाहर लगा है, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट DIY आई डिड फॉर दिस हाउस. तो ये जो रूम है, ये सिर्फ एक रूम नहीं है, ये बेसिकली एक इमोशन है मेरा. क्योंकि जब आप इस रूम में एंटर करोगे तो आप देखोगे कि ईच कॉर्नर इज फुल ऑफ DIYs. मतलब मैंने इतनी सारी चीजें हाथ से बनाई हैं बिकॉज इतना सारा प्यार मैंने लगा दिया इस रूम में. एंड ये एक छोटा सा स्टडी टेबल है जो मैंने IKEA से लिया था, जो फिट्स परफेक्टली इनटू दिस कॉर्नर. ये एक डम्पस्टर है जो एक्चुअली डम्पस्टर जैसा दिख रहा है, बट दिस इज नॉट अ डम्पस्टर, इट्स अ स्टोरेज जहाँ पे मैं अपने किड्स की सारी डॉल्स स्टोर करती हूँ. So this is how I make use of this, like a basket which I got it from IKEA. And this is a small piece of art जिसमें हम चारों के handprints हैं, मेरे, अमित के और बच्चों के. This I did when the kids were 1 year old. So this is a very very special piece of like a wall art for me. And the mirror here, the full length mirror, is also a DIY. This mirror was brought from somewhere and framed. और ये frame के आसपास जितने भी आप ये characters देख रहे हो, all this is done by me, hand painted and then stuck to the mirror to give it a little kiddish appearance. उसके ऊपर ये string of lights लगाई हुई है मैंने, again to make the whole mirror look cute. This wall art is again done by me. I remember कि मैं जब ये घर बन रहा था, हर दिन मैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए आती थी और फिर इन कैरेक्टर्स को sketch करती थी वॉल पे. So this whole wall mural is done by me. It is, kids are really fascinated by animal characters. तो मैंने उनके ही मतलब से एक forest डिज़ाइन करने की कोशिश करी है. इनफैक्ट बेड के पीछे भी आप देख सकते हो, ये फ्लावर्स, एवरीथिंग इज पेंटेड बाय मी, दीज डेजीज. और तो ये पूरा एक फॉरेस्ट थीम देने की कोशिश करी है मैंने, क्योंकि फ्लावर्स के ऊपर जो लैम्प्स लगे हुए हैं, वन इज इन अ शेप ऑफ अ लीफ एंड अनदर इज अ शेप ऑफ अ बटरफ्लाई. सो ये बेड के पीछे पूरी वॉल इज पेंटेड. ये ड्रीम कैचर है. दिस इज ऑल्सो अ DIY. जैसे कि मैंने बोला, ये पूरा रूम बहुत सारे DIYs आपको दिखेंगे बिकॉज मैं सब कुछ अपने हाथ से करना चाहती थी, अपने बच्चों का कमरा खुद से सजाना चाहती थी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. आई रियली होप ये जो प्यार है, ये जो इमोशन है, ये आ रहा हो कैमरे में, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग. बेड के साइड में एक छोटा सा स्टोरेज है. ये एक ट्रॉली है जहाँ पे उनके सारे टॉयज रहते हैं. एंड अगर इस रूम में स्टोरेज की बात करें तो ये एक और ट्रॉली है एट द एंट्रेंस, इसमें भी उनके टॉयज रहते हैं. स्टडी टेबल के ये जो ड्रॉर्स हैं, ये थोड़े मेसी हैं, बट उनकी जो डेली यूज़ की एक्टिविटीज़ हैं या बुक्स हैं या कलर्स हैं, स्टेशनरी है, वो सब इधर रहते हैं. शेल्फ्स लगाई हैं मैंने थोड़ी सी क्यूट और ये फंकी. उस पे उनके बुक्स रहते हैं, स्टोरी बुक्स विच दे कैन ग्रैब देमसेल्व्स. और अगर हम स्टोरेज की बातें करें तो वार्डरोब है जो ओक फिनिश में है. एंड उसमें ऑब्वियसली वी स्टोर उनके कपड़े, उनके सप्लाईज, उनके स्कूल के रिलेटेड स्टफ. तो
ये पूरे जो कलर पैलेट देने की कोशिश करी है मैंने पूरे रूम को, इट्स एक्चुअली इन पेस्टल कलर्स, ताकि किड्स को अपील करे। बहुत भड़कीले कलर्स या बहुत ही ब्राइट कलर्स मुझे किड्स रूम में अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा सा सूदिंग लुक देते हैं, नर्सरी टाइप का लुक देते हैं, एंड आई रियली लाइक इट लाइक दैट। तो मैंने लाइक आई सेड बहुत प्यार से ये रूम बनाया है। आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आपको आया है पसंद तो प्लीज़ like this video and do share it with your friends also. In fact ये जो बेड आप देख रहे हो, ये डार्क ब्राउन कलर का शीशम वुड का बेड था, जो मैंने इसको भी पेंट कर दिया बिकॉज इट वाज नॉट गोइंग विद द वाइब ऑफ द रूम। तो मैंने इसको एक पेस्टल ग्रे कलर में पेंट करा था। इफ यू वांट टू नो एनी मोर डिटेल्स अबाउट द कलर्स एंड एवरीथिंग, प्लीज डू कमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस और क्वेरीज। एंड बस एक अपनी तरीके से बच्चे के रूम को सजाने की कोशिश करी है मैंने, एंड आई रियली होप इट शोज द लव। अभी तक आपने देखा मेरा लिविंग रूम, किचन एंड द डाइनिंग स्पेस एंड द किड्स रूम। So just next to the dining space is this small little corridor which connects actually the living room to the master bedroom. छोटी सी कॉरिडोर है यहाँ पर, तो अब मैं आपको ये कॉरिडोर दिखाऊंगी। So this is the kids bedroom and then this is the corridor. Now कॉरिडोर के इस वॉल पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, एंड इस वॉल पे भी मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं मम की और बच्चों की। एंड दिस इज The little me when I was really tiny and my parents. और यहाँ पे एक quotation है family की, and then this is the door which actually opens up as the master bedroom. So welcome to my bedroom. मुझे अक्सर लगता है कि मास्टर बेडरूम इज द मोस्ट अंडरस्टेटेड रूम ऑफ द हाउस। यानी लिविंग रूम में सब लोग बहुत ध्यान देते हैं या किचन में बहुत ध्यान देते हैं, पर मास्टर बेडरूम में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। In fact, I feel if the kitchen is the heart of the house, master bedroom is the soul of the house. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारा काम करने के बाद हम आते हैं, रिलैक्स करते हैं, अनवाइंड करते हैं और सोते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसको भी ड्यू इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। मेरे चैनल पे मास्टर बेडरूम टूर है, जिसपे एक डिटेल्ड वीडियो है अबाउट माई मास्टर बेडरूम टूर, अबाउट ईच एलिमेंट, स्पेशली दिस विंडो सीटिंग जो मैंने बहुत ही प्यार से बनाई है। यहाँ पे मैं शाम की चाय पीती हूँ और अपना आर्ट करती हूँ। If you want, you can go back to my channel and see the master bedroom tour in detail. आपको काफी पसंद आएगा। लीजिए, शाम होने को आई, यानी दिन खत्म हो गया। आपसे बात करते करते कैसे दिन खत्म हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, पर अभी भी इस घर की एक छोटी सी जगह बाकी है। वेलकम टू माय बालकनी। ये बालकनी साइज में थोड़ी छोटी है, पर जितना छोटा इसका साइज है उतनी ही चहल पहल यहाँ रहती है। बहुत लाइफ है मेरी इस छोटी सी बालकनी में। यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं जो ऑब्वियसली इस बालकनी को और सुंदर बनाते हैं। ये टिमटिमाते हुए तारे मुझे याद दिलाते हैं कि शाम का टाइम हो गया है, चलो चाय पीने बालकनी में। और ये एक छोटा सा हैंगिंग टेबल है जहाँ पे मेरे को अपना सामान रखने में, चाय के कप रखने में सहूलियत होती है। एक बेंच लगा रखी है जहाँ पे हम बैठ के घंटों आराम से व्यू एंजॉय करते हैं और बातें करते हैं।
एक छोटा सा बर्ड फीडर भी है जहाँ पे पूरे दिन चिड़िया आती है और बहुत चहल पहल रहती है। तो जैसे मैंने कहा कि इस बालकनी में काफी लाइफ रहती है। तो बस किचन में गरम गरम चाय तैयार हो गई है और अब हम चलेंगे बालकनी की तरफ। वीकेंड की चाय और कॉफी यहीं पे होती है अक्सर। अब क्या करें, जगह चाहे छोटी हो पर बालकनी एक घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ताजी हवा तो यहीं से आनी है। ताजी हवा, गरम चाय और ये आटे के बिस्किट, बस दिस इज द इवनिंग, द मंडेन इवनिंग आई रियली लव। तो ये है मेरा छोटा सा बालकनी सेटअप। स्पेस थोड़ी छोटी है, लेकिन 2 लोग आराम से बेंच पे चाय पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ पे चेयर लगा सकते हैं, इतनी स्पेस है यहाँ पर। और स्पेस को बचाने के लिए, जैसा कि मैंने दिखाया, मैंने बाहर एक ब्रैकेट सॉर्ट ऑफ एक बास्केट लगा लिया है रेलिंग का, आयरन का, जिसके अंदर मैं पॉट्स रखती हूँ। सेफ रखता है वो, ये पॉट्स को सेफ रखता है और स्पेस को भी सेव करता है बेसिकली। लाइट्स लगाई थी मैंने दिवाली पर, जो अभी तक मैंने नहीं उतारी है। हॉलीडे सीजन चल रहा है तो मैं पूरे हॉलीडे ही लाइट्स रखूंगी और न्यू ईयर तक ये लाइट्स यहीं पे रहेंगी। ये एक छोटा सा टेबल है जिस पे अभी मेरा कैमरा बैठा हुआ है और इस टेबल पे हम लोग चाय रखते हैं, बिस्किट्स रखते हैं, कुछ सामान कभी सुखाने के लिए चाहिए होता है तो वो रख देते हैं। एक छोटा सा ऊपर आपने देखा होगा बर्ड्स के लिए, बर्ड फूड के लिए एक जो अमेज़न से मिलता है, मैंने बर्ड फीडर लगाया हुआ है। एक्चुअली ये ओपन स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं सुबह सुबह और पूरे दिन एक्चुअली, और यहाँ पर आके वो खाना खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी वाटर बॉडी है सामने, तो अभी आपने देखा होगा बहुत देर से एक डक अपने पंख सुखा रही है, अभी भी सुखा रही है एक्चुअली। मुझे लगता है वो उड़ने की तैयारी में है, तो वो पूरे दिन तैर के अपने पंख सुखा रही है। तो वेस्ट फेसिंग है ये बालकनी, तो ये हल्की हल्की जो सनसेट होता है मेरी बालकनी से दिखता है, और ये लाइट एकदम ब्राइट लाइट से जब धीरे धीरे मध्यम होनी स्टार्ट होती है तो मेरा इस बालकनी में आने का मन करता है। दिस इज द फेवरेट टाइम ऑफ द डे जब मैं यहाँ पे आती हूँ, अपने प्लांट्स को वाटर करती हूँ, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो ये बालकनी के कुछ पल मेरे लिए बहुत खास है। तो बताइए, क्या आपको भी इस घर में उतना प्यार दिखा जितना मुझे दिखता है? तो ये था मेरा घर, मेरा आशिया, जहाँ मैं रहती हूँ कुछ लोगों के साथ जिनको मैं बेहद प्यार करती हूँ, और इस घर को भी मैंने बहुत प्यार से सजाया है। बदले में इस घर ने मुझे भी दी है बहुत सारी मेमोरीज। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आशा करती हूँ ये होम टूर वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको सिर्फ वीडियो मत मानिए, ये एक छोटा सा इमोशन है मेरा। इट्स अ वेरी इमोशनल वीडियो फॉर मी, जिसको मैं हमेशा चेरिश करूंगी, बार बार यूट्यूब पे जाके शायद देखा भी करूंगी। इसी के साथ आई से गुड बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। बहुत प्यार से वीडियोस बनाती हूँ होम की और बच्चों की और बहुत सारी एक्टिविटीज की, और इस वीडियो को भी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज स्प्रेड द हैप्पीनेस। आपको सबसे अच्छा कौन सा कॉर्नर लगा, कौन सा स्पेस लगा, मुझे जरूर बताइए। टिल देन आई विल सी यू सून, बाय बाय।